Today we will study the miscellaneous exercise of the chapter 6. So question number 1 is not in the syllabus. Now question number 2. In question number 2, so that the function given by fx is equal to log x upon x has a maximum at x equal to a. So that is solution. Answer: given function is given fx is equal to log x upon x. Now f dash x is equal to first function, that is a d by dx of u by v, v d by dx of u minus u d by dx of v upon v square. So we apply this formula, that is x d by dx of log x minus log x d by dx of x upon x square. So x d by dx of log x, that is 1 upon x, minus log x and d by dx of x, that is 1 upon x square. It means that will be equal to 1 minus log x upon x square. For maxima, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू ई, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं. तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई दैट 1 minus log x is equal to 0. This is equal to the log x is equal to 1 or log 1 or therefore x is equal to e पे पावर 1. यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका बेस e मानते हैं तो e पावर 1, x is equal to e power 1, that is x is equal to e. Now for minimum maxima we have shown that f double dash x is negative or positive, so we have to find the f double dash x. So again, which is in the form of u by v, so we have to differentiate it. 1 upon x square d by dx of 1 minus log x minus 1 minus log x d by dx of x square divided by x square का whole square. So again simplify it, that is the 1 upon x square and differential of 1 का differential 0 और log x का डिफरेंशियल 1 by x, तो माइनस 1 by x. अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर, दैट विल बी द x स्क्वायर. तो x स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस log x and differential of x square is 2x divided by x to power 4. This is equal to x का 1 पावर कैंसिल हो सकता है यहाँ से, तो ये आएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स, इसका ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो माइनस 2x और प्लस 2x log x divided by x to power 4. तो x इज द कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं इसमें और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो दैट इज 1 plus
1 plus twice 1 minus log x upon x to power 4. It means that is 1 minus 1 plus 2 minus 2 log x upon x क्यूब. एक पावर x का कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब होगा, यानी कि ये ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे. तो हमने क्रिटिकल पॉइंट जो निकाला है, क्या निकाला, x इक्वल टू ए. x इक्वल टू ई पे देखना है. तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, और सॉल्व होगा ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं -3 2 log x अपॉन x क्यूब. Now f double dash at e, x is equal to e. तो 3 minus 2 log e base e upon e का क्यूब. And here is minus already written. So it means this is the minus 3 minus 2 upon e cube. It means minus 1 upon e का cube. Therefore f double dash that e is less than 0. This implies that fx has maxima at x is equal to a. At x equal to a. So this is the answer. Now the question number 4. In question number 4, that question number 3, actually question number 3 is not in the syllabus. Okay, so now the question number 4. The two find the equation of the normal to the curve y square is equal to 4x at the point 1, 2. So they find the equation of the normal to the curve y square is equal to 4x at point 1, 2. So given curve is answer. Given curve is y square is equal to 4x. Differentiating with respect to x, we get 2y dy by dx is equal to 4, or dy by dx is equal to 4 upon 2y, that is 2 upon y. तो dy by dx is equal to 2 upon y. अब ये क्या हो गया इसको, therefore slope of normal is equal to normal, that is dy by minus 1 upon dy by dx at x is equal to 1. तो माइनस x इक्वल टू एट 1 x इज इक्वल टू 1, 2. इसे फाइंड करना 1, 2 फाइंड करना है. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 minus 1 upon dy by dx at 1, 2. Point is 1, 2 is given. तो now minus 1 upon dy by dx that is 2 upon y, that is 1 at 1, 2. It means minus 1 upon, put the value of y, it means minus 1. Slope of normal is minus 1. As you know, equation of normal at 1, 2
y minus y1 is equal to minus 1 dy by dx, यानी x minus x1, x1 is 1, that is y minus 2 is equal to minus x plus 1. It means x plus y minus 2 minus 1 is equal to 0. This implies that x plus y minus 3 is equal to 0, which is the required equation of normal, which is the required equation of normal. Question number 5. In question number 5, show that the normal at any point theta to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is a constant distance from the origin. Okay, so x is equal to a cos theta plus a theta sin theta is given, and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is given. So first we have to find the dx by d theta and dy by d theta, and then we will find the dy by dx. So dy by dx, it means dy by d theta divided by dx by d theta. So then we get the slope of the tangent, which is dy by dx, and then we have to find the slope of normal, and after then we have to find the equation of normal, and we have to show that this equation of normal is at a constant distance from the origin. So it means answer we have x is equal to a cos theta plus a theta sin theta. X is equal to is given. To differentiating with respect to theta, we get dx upon d theta. a ये वैसे रहेगा, और cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस साइन थीटा, और प्लस ए इज द कांस्टेंट, तो वैसे रहेगा. अगर थीटा और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट टूल क्या मतलब हो गया कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, एंड प्लस साइन थीटा डिफरेंशियल ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज 1. तो दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ a cos theta plus a theta sin theta. Again we can solve it. Minus a sin theta plus a theta cos theta and plus a sin theta. So plus a sin theta and minus a sin theta can be cancelled. Therefore we have a theta cos theta. So this is the dx upon d theta. Now we have to differentiate the function y. So y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is given. So again differentiating it with respect to theta, we get dy by d theta. A is the constant, differential of sin theta is cos theta, minus differential of this is the a constant, the first function that is theta, and differential of cos theta is minus sin theta plus cos theta, and differential of d theta by d by d theta of theta is 1. So again simplify it, that is a cos theta minus plus a theta sin theta and minus a cos theta. So it means कि plus a cos minus a cos theta and plus a cos theta can be cancelled. We have a theta sin theta. So this is the dy by d theta.
Now you have to find the dy by dx. dy by dx, as you know that dy by dx is equal to the dy by dx is equal to the dy by d theta upon dx by d theta. So put the value of dy by d theta. dy by d theta is a theta sin theta, and dx by d theta is a theta cos theta. a theta cos theta. So a theta cancel, that is sin theta by cos theta, it means tan theta. So dy by dx is equal to tan theta. Okay, now slope of the normal at theta पे पॉइंट करेंगे, that is -1 upon dy by dx. it means माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, dy by dx कितना है, dy by dx है tan थीटा. तो tan थीटा यानी कि tan 1 upon tan theta is equal to cot theta, and here minus is written, so you have to write here minus cot theta. That is the minus cot theta. Now, so this is the slope of the normal. Now we have to find the equation of the normal. Therefore, equation of normal at the point theta, y minus y1. y1 means y coordinate, that is a sin theta minus a theta cos theta, जो y coordinate था. y minus y1 is equal to minus cot theta. This is the slope of the normal. And x minus a cos theta plus a theta sin theta. So this is the x minus x1. As you know that equation of normal is equal to what? Y minus y1 is equal to -1 upon dy by dx, x minus x1. So by this formula we get y minus y1 is equal to minus dy by dx, 1 upon dy by dx, x minus x1. So simplify this, we get we'll simplify it. So we'll simplify it, that is open this bracket, y minus we can write here cot theta. Cot theta means cos theta upon sin theta. cos theta upon sin theta लिख सकते हैं. और अगर हम इसको और सॉल्व कर लें तो क्या हो सकता है, चलो ओके, y माइनस a sin theta, and plus a theta cos theta is equal to here x की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, cot थीटा की जगह पे माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा. इसको ऐसा लिख सकते हैं. अब sin थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो यानी कि y sin थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा इंटू एक्स प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा, यानी प्लस a थीटा cos थीटा sin थीटा कैन बी
कैंसिल, और इसको इस तरफ लाते हैं तो लिख सकते हैं एक्स cos थीटा फिर प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए cos स्क्वायर थीटा यहाँ बच रहा है, यानी कि ए cos स्क्वायर थीटा और प्लस इसको इधर लाएंगे माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा को, तो बने प्लस आ जाएगा, तो यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे तो इट मीन्स कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, इट मीन्स ए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रिड्यूसेज एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द वर्जिन, डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द वर्जिन। तो देयरफॉर द distance of this normal from the virgin, ये जानते हैं यहाँ पे कि जो है अगर x1 y1 कोई पॉइंट है और इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by है प्लस c इक्वल टू 0 है, तो डिस्टेंस क्या लेके चलते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मान के चलते थे कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट। तो दिस इज द लाइन एंड पॉइंट इज गिवन वर्जिन मीन्स कि x1 एंड y1 0, तो इट मीन्स दिस विल बी द 0 एंड दिस विल बी द 0, ओनली c इज लेफ्ट, तो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वी कैन राइट हियर a that is c, this is the a upon under root this cos square theta plus sin square theta, it means a that is 1, this is the 1, therefore that equal to the a, which is constant, जो हमको प्रूव करना था कि डिस्टेंस फ्रॉम वर्जिन टू द नॉर्मल इज कांस्टेंट। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द इंटरवल in which the function f is given by इतना, first is increasing and second is decreasing। okay, तो solution fx we have fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x, दिस इज द फंक्शन। हमको क्या फाइंड करना है, देखना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो इस फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करके तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। अच्छा, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 sin x है माइनस 2x है इतना, तो यहाँ पे नीचे 2 प्लस cos x है, तो कुछ ऐसा बना जैसे 2 प्लस cos x यहाँ पे बन जाए। तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो बन जाएगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 4 sin x माइनस x इज द कॉमन, तो 2 प्लस cos x यहाँ भी आ जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x। अब इसको जो है इसको ले सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा इजी हो जाए, 4 sin x अपॉन
2 plus cos x minus x 2 plus cos x अपॉन 2 plus cos x। अब 2 plus cos x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं 4 sin x अपॉन 2 plus cos x माइनस x, माइनस x ले सकते हैं। अब उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एफ एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट, देयरफॉर एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस फॉर्म में, u बाई वी के फॉर्म में है। तो u बाई वी के फॉर्म में तो क्या अप्लाई करेंगे, v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज v 2 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, v डी बाई डी एक्स ऑफ u 4 डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, तो डेट इज 2 का डिफरेंशियल 0 एंड कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो -1, तो दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ एक्स। नाउ now open this bracket, so then we get 2 plus 4 to the 8 cos x plus 4 cos square x minus plus 4 sin square x divided by 2 plus cos x का whole square minus 1, taking the LCM, तो 8 cos x, 4 is the common, that will be the cos square x plus sin square x minus 2 plus cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2 plus cos x का होल स्क्वायर, टेकन एलसीएम। नाउ again solve it, so that will be the 8 cos x plus 4 minus 2 plus cos x, 2 plus cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 plus cos x का होल स्क्वायर, और 4 is the common, तो दैट इज 2 cos, ईयर को कॉमन है 4, 2 plus cos x है ना यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द कॉमन, और cos x से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके ओपन दिस ब्रैकेट, तो 8 cos x प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर 4 plus b square, but this sign will be changed, here negative is written, so that will be the negative minus cos square x and minus 4 cos x divided by 2 plus cos x का होल स्क्वायर। अब वो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, +4 -4 कैन बी कैंसिल, तो 8 cos x minus 4 cos x that is 4 cos x and minus cos square x से divided by 2 plus cos x का whole square, cos x is the common, so that is 4 minus cos x divided by 2 plus cos x का होल स्क्वायर, तो दिस इज द एफ डैश एक्स, दिस इज द एफ डैश एक्स। इट मीन्स
ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये जो है 4 माइनस कॉस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो होगा। और कॉस एक्स जो की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 और +1 के बीच में लाई करती है। तो इट मीन्स क्या हो सकता है यहाँ पे कि एफ डैश कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये या तो ये जीरो होगा ग्रेटर देन जीरो, या तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन्स नाउ 4 माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल एक्स, एज कॉस एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेकर के +1 के बीच में। कॉस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करती है, इसलिए जो है इसके बीच में लाई करेगा। और एंड ऑल्सो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी पे अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है किसी ब्रैकेट पे तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से ही ग्रेटर होगी। तो फर्स्ट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एफ एक्स इज इंक्रीजिंग if f dash x is greater equal to 0, that is from first, this is the first equation, that is second, that is from second cos x is greater than 0 or cos x is less than 0 respectively. Therefore f(x) is increasing यानी cos x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर cos x की वैल्यू निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आएगा तो यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो इट मीन्स कि जो है cos x निगेटिव होगा, तो cos x निगेटिव होगा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है डिक्रीजिंग होगा। तो f(x) is increasing when x is lies between 0 to π/2, या x is greater than 0 and less than π/2, इसमें इंक्रीज करेगा। और किस में इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीजिंग ये भी हो सकता है कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसमें भी इंक्रीज करेगा 3/2 से लेकर के x to 2π, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो cos x की ग्रेटर देन 0 इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें इंक्रीज करेगा। एंड डिक्रीजिंग when x is greater than π/2 and less than 3π/2, इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो है x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाए। π/2 से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए f डैश x क्या करेगा, f(x) क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा और इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय इतना। तो सबसे पहले फंक्शन को अरेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा cos x 4 माइनस cos x। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
अगर एफ डैश इज लेस देन 0 आता है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। 4 माइनस कॉस एक्स ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये कॉस एक्स जो है या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो कॉस एक्स लेस देन 0 होगा। तो यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इनको सब मिला करके क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अगर कॉस एक्स नेगेटिव है तो सब मिला के क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि कॉस एक्स कब पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स जो पॉजिटिव होगा वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस एक्स पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या बनेगा, इंक्रीजिंग। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉस एक्स नेगेटिव है तो वहाँ पे क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन fx is equal to x cube plus 1 upon x cube is increasing, second is decreasing. तो again given fx is equal to x cube plus 1 upon x cube. Now this can be written as x cube plus x to power minus 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए हमको पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल दैट इज 3x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल तो माइनस 3x to power minus 4. It means 3 is the common, that will be the x square upon 1 upon x power 4. यहाँ 3 कॉमन ले लिया, यहाँ x स्क्वायर बचेगा और ये x पावर माइनस 4 को हम ले सकते हैं 1 अपॉन x पावर 4, इस तरह से चेंज कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 3x पे पावर 6 माइनस 1 अपॉन x पे पावर 4। तो दिस इज द एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स इज 3x पे पावर 6 माइनस 1 अपॉन x पे पावर 4। अब यहाँ पे और थोड़ा सा डिफरेंस फैक्टराइज हो सकता है ये, तो हम इसको फैक्टराइज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 अपॉन x पावर 4 वैसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख लिया। और ये क्या किस फॉर्म में लिखा है, x पावर 6 माइनस 1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर क्यूब का या एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। हमको फैक्टराइज करना है तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स पे पावर 4, और ये बन सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन सेकेंड ब्रैकेट। तो बाय दिस फार्मूला वी हैव टू ओपन दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड एक्स पे पावर 4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर द इन सेकेंड ब्रैकेट, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। नाउ 3 upon x to power 4, this can be written as x to power 4 plus x square plus 1 and x plus 1 x minus 1, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 को हम ले सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट। तो दिस द फार्मूला। नाउ f dash, this is the f dash x. Now this is the first equation. अब इसको फिर से और सॉल्व करेंगे कि जो है ये आ जाएगा कि f3 बाई यहाँ पे x पे पावर 4 है, 3 पावर x पावर 4। अब उसके बाद इसको और अब इसके लिए हम क्या करना है कि f डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे,
0, f dash इज इक्वल टू 0, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट 3/x⁴, x⁴ प्लस x² प्लस 1 and x plus 1 x minus 1 is equal to 0. This implies that 3x power this implies that लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं here 3x⁴ plus x² plus 1 is positive. हमेशा ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ कोई पॉजिटिव कोई नंबर नेगेटिव है नहीं, तो सब पॉजिटिव ही होगा। और x की यहाँ पे पावर 2 लगा और यहाँ पे पावर 4 लगा है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। फॉर ऑल रियल x की कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे तो ये पॉजिटिव ही बनेगा। देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 or x is equal to +1. तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अब ये जो है जो रियल नंबर होगा क्या हो जाएगा इसमें डिवाइड, किस में रियल नंबर डिवाइड हो गया कि दिस इज द -∞ एंड दिस इज द +∞, दिस इज द -1 एंड दिस इज द +1, तो -1 और +1। अब इंटोल क्या बनेगा -∞ टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू ∞। तो देयरफॉर क्या ले सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइड द रियल लाइन इनटू 3 disjoint subinterval that is -∞ to -1, 1 -1 to 1 and 1 to ∞। अब इसमें पहले फर्स्ट इंटरवल के देखते हैं। फॉर -∞ टू -1 में देखते हैं इसमें कि फ्रॉम माना फर्स्ट इक्वेशन ये कि फ्रॉम फर्स्ट f डैश x। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख लेते हैं, -2, तो -2 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, फिर आपको ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे -2 और +1 -1 और -2 और -3, तो -2 और -1 -3 और -1, तो -3 और -1 दैट इज +3, यानी प्लस बन जाएगा। तो यानी कि इसको हम सकते हैं प्लस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, दिस इज द माइनस एंड दिस इज द माइनस, वी गेट द पॉजिटिव टेकिंग x इज इक्वल टू -2। अगर हम -2 लेते हैं तो ये f डैश एस पॉजिटिव बनेगा। देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग in -∞ to -1, -∞ to -1 में इंक्रीज करेगा। अब दूसरे के लिए देखते हैं। फॉर अदर इंटरवल फॉर -1 to 1 -1 to 1 -1 to 1 के बीच में लेके चलता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट f डैश x। अगर देखो x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देते हैं, तो यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड थर्ड ब्रैकेट में अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2, तो प्लस प्लस फिर माइनस, यानी क्या आ जाएगा माइनस, दिस इज द नेगेटिव। फॉर यू आर टेकिंग x इज इक्वल टू 1/2,
अगर हम टेक एक्स इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो हमारा ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव बन जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -to 1। देयरफॉर एफ एक्स इज decreasing at -1 to 1 में डिक्रीज करेगा। फॉर अब 1 to इन्फिनिटी देखेंगे, 1 to इन्फिनिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यानी ये पॉजिटिव, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव, तीसरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव, और दैट विल गेट दी पॉजिटिव। यहाँ क्या ले लिया, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये पॉजिटिव बनेगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट 1 to इन्फिनिटी। अब 1 to इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी से -1 में इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज फर्स्ट एंड इंक्रीजिंग function for x is less or equal to -1 and x is greater equal to 1, and second decreasing function when x की वैल्यू क्या है, -x is greater equal to -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1, मतलब -1 से 1 के बीच में फंक्शन क्या गया, डिक्रीज कर रहा है। और जो है एक्स और माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 to इन्फिनिटी में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर